Now today we are going to start with chapter number 2, Civil Administration under British Rule. ठीक है, इसमें हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अंडर द ब्रिटिश रूल. ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लेड अ रोल ऑफ पिटिशनर बिफोर द मुगल. बिगनिंग में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पिटेटर का रोल प्ले करा बिफोर द मुगल एम्पायर. Now, structure of administration and administrative policy was drafted to enforce proper system of administration in order to control the conquered region. Though this policy, the company wanted to achieve 3 objectives. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस ऑब्जेक्ट, उसको 3 ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने थे. ठीक है, वो क्या थे? टू इंक्रीज द प्रॉफिट थ्रू ट्रेड. ठीक है, ट्रेड करके वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते. टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टेरिटरी हेल्ड इन इंडिया. ठीक है, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसको इंक्रीज करना चाहते थे. टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश होल्ड ओवर इंडिया, और जो ब्रिटिश का होल्ड था उसको वो बढ़ाना चाहते. नाउ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first step in this direction. This act subjected to the action of the governors of the East India Company to the supervision of the British government. The directors of the company were asked to place all documents concerning the civil, material and revenue affairs of the company before the British government. जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने कहा कि अपने सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कंसर्निंग टू सिविल और मिलिट्री, आपको ये सब हमारे आगे रखने. ठीक है, ऑल्सो टू कर्ब करप्शन, ऑल ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हैड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ देयर एसेट्स. ठीक है, करप्शन ना हो इसलिए सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपनी, ठीक है, अपना जो एसेट्स की डिटेल्स हैं वो भी बताएं. ठीक है, नाउ डिफेक्ट्स. द एक्ट हैड सम मेनी डिफेक्ट्स. द गवर्नर ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे resented the control imposed on them and often took independent decisions without consulting the governor general. The functioning of the Supreme Court also suffered as power were also not clearly specified. The Supreme Court भी बहुत सफ़र कर रहा था क्योंकि उसकी पावर है वो यहाँ पे properly या clearly specified नहीं. Now, Pitt's India Act of 1784, later new Act Pitt's India Act 1784 was passed to improve upon the regulating act. This act remained the basic principle of administration till 1857. 1857 तक ये एक्ट क्या रहा? बेसिक प्रिंसिपल रहा. ठीक है, दिस एक्ट gave the British government supreme control over East India Company by establishing new board of control. ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया. और कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश करने के बाद. This body has 6 commissioners from the British government to guide and control the work of the East India Company. The Governor General had a council comprising 3 members whose advice was compulsory for a Governor General to follow. ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई जिसमें आपके 3 मेंबर थे. ठीक है, उसका जो एडवाइस था वो कंपलसरी था गवर्नर जनरल को कि वो फॉलो करें. Now, Charter Act. The various Charter Acts were also directed and curbing the power of the company. The Charter Act of 13 abolished company monopoly of trade and opened trade gates for all the British persons. जो मोनोपोली थी ट्रेड की वो हटा दी गई. ठीक है, उस सबको ट्रेड करने की परमिशन दे दी. Under the provision of Charter Act 1833, the administration of the company was centralized. And by the Act of 1833 जो पावर थी उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया. मतलब जो पावर थी वो किसके हाथ में दे दी गई? सेंटर के हाथ में दे दी. ठीक है, इट्स अ केस स्टडी. द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश को टेक ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कि ब्रिटिश जो था वो बहुत सारी टेरिटरीज को ले लेता था. वो क्या रीजंस थे? There were distinctly among the Indian rulers. The Indian rulers have tried to expand their territory at the expense of other states. The East India Company took advantage of this disunity. Some Indian states sides the British for defeating other Indian states. The British follow the policy of divide and rule and repeal the benefit. ठीक है, क्योंकि वहाँ लोगों के बीच में डिसयूनिटी थी, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया. ठीक है, और क्या करा? डिवाइड एंड रूल को फॉलो करा. In the 18th century, most of the Indian states were busy safeguarding themselves. They hardly had any time for the development of the states and subject. As a result, the people did not feel happy under the divide rule and refused to support them in the times of crisis. देखो, पहले इंडियन स्टेट्स बिजी थी अपने को सेफगार्ड करने में. उन्होंने लोगों की डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया और लोग क्या थे? अनसेटिस्फाइड विद द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी.
The British were more technically sound due to the Industrial Revolution in Europe. British had never had newer and better technology with them in every field, while the Indian army is left behind. ठीक है, ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था यूरोप में, ब्रिटिशर्स के पास नई टेक्नोलॉजी थी और इंडियंस जो थे वो लैक कर रहे थे टेक्नोलॉजी. The British army was well managed, the army was well paid, well equipped, well trained, and quite motivated to serve the British interest. All this ensured their loyalty to the British. Even the Indians in the British army worked devotedly for the British. The Indian rulers did not spend much on modernization training of the army. Their soldiers draw lower salaries and were not well equipped. Even the army chiefs were not loyal to the king. ठीक है, देखो जो ब्रिटिश की आर्मी थी उनको अच्छा पैसे मिलते थे, अच्छा खाने को मिलता था, अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी, लेकिन जो इंडियंस थे उनमें लैक कम. ठीक है, और जो आपके सोल्जर्स थे उनको सैलरी भी कम दी जाती थी और जो आपके आर्मी चीफ्स होते थे वो लॉयल भी नहीं रहते थे किंग्स के. All these shortfalls paved the way for British rule in India, and even small British army proved superior to the larger Indian army. ठीक है. Now, nature of British administration. The daily administration was carried out by the four agencies. Nature बताना है British administration का. Basically four agencies थी जो administration को देखती थी. The civil service for general administration. Civil service किसके लिए होती थी? General administration के लिए. The army to protect the territories held by the British in India. Army protect करने के लिए territory को जो Indian ने ले ली थी. The police to maintain law and order to ensure peace, and judiciary to provide justice. Police किसके लिए थी? Maintain law and order, and judiciary to provide justice. The civil services. 1793 Lord Cornwallis started civil service in Indian civil services. ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट करा इंडिया में. टू एडमिनिस्टर द कंप्लीट टेरिटरी इफेक्टिवली. ही इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द ऑफिशियल, रेज देयर सैलरी टू रिमूव करप्शन एंड लिंक देयर प्रमोशन टू सीनियरिटी. ठीक है, सैलरीज वगैरह बढ़ा दी जिससे करप्शन ना हो और जो उनका प्रमोशन है वो सीनियरिटी को लिंक कर. 1801 Lord Wellesley set up a college at Fort William to educate young recruits. Till 1850 the civil servants were nominated by the director of the company. 1853 तक जो सिविल सर्विसेज वाले होते थे उनको नॉमिनेट करा जाता. ठीक है, वो कौन करता था? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी करता था. But thereafter civil servants began to be selected through a competitive exam. Indians were permitted to take examination only after 1858. 1858 तक इंडियंस को अलाउ नहीं करा था कि वो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं. आफ्टर 1858 दे वर परमिटेड टू गिव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. इवन देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट सिलेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. देखो कुछ रीजंस थे, उसके बाद भी बहुत ही मुश्किल होता था सिलेक्शन. वो क्या रीजंस थे? द एग्जामिनेशन फॉर ICS वाज हेल्ड इन लंदन. ओनली फ्यू इंडियंस कुड अफोर्ड टू ट्रैवल कॉज. पहला रीजन क्या है? जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता था वो लंदन में होता था और बहुत ही कम ऐसे इंडियंस होते थे जो ट्रैवल करके वहाँ एग्जाम देने जा सकते. द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वाज इंग्लिश विच वाज फॉरेन लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन. जो मीडियम क्या था? पहले इंग्लिश था. ठीक है, जो क्या थी? फॉरेन लैंग्वेज थी, बहुत लोगों को नहीं पता थी. द अपर एज लिमिट फॉर कॉम्पिटिंग वॉज वेरी लो. जो अपर एज लिमिट थी वो बहुत ही ज़्यादा लो. The army, the East Indian Company, required a regular army to protect Indian state settlement from aggressive local rulers and rival European companies. In 1748, company forces at Madras were under the command of experienced British officer named Stringer Lawrence. He was given the responsibility to train Indian soldiers called sepoys. ठीक है, जो कंपनी फोर्सेस जब वो थी मद्रास में थी, इसके अंदर कमांड ऑफ आर्मी ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था स्ट्रिंगर लॉरेंस. ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको इंडियन सोल्जर जिन्हें सिपाहीज कहते हैं उनको ट्रेन करना है. However, the Indian soldiers could not rise beyond the level of Subedar. Thus, he laid foundation of the army which grew into regular Madras army in the next day. ठीक है, जो सोल्जर्स होते थे उनको सूबेदार से ऊपर की पोस्ट नहीं मिलती इंडियंस को. Working on the same lines, Bombay and Calcutta too trained their separate armies. Later, all three armies were united from the British Indian Army. ठीक है, बॉम्बे और कलकत्ता ने भी अपनी आर्मी को ट्रेन करा, लेकिन फिर उसके बाद तीनों ने अपनी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता ने अपनी आर्मी को यूनाइट कर दिया.
कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। कॉम्पोजिशन कैसा था हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी का? द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कंसिस्ट ऑफ टू फ्रॉम्स, द रॉयल एंड द कंपनी ट्रूप। द रॉयल ट्रूप्स हैव ओनली ब्रिटिश रिक्रूट्स। Their terms of service were far better than company troops, which were to mix both Europeans and Indians. देखो, रॉयल ट्रूप्स में तो खाली ब्रिटिश के होते थे, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी ट्रूप्स में यूरोपियंस भी होते थे और इंडियंस भी होते थे। द इंडियन सोल्जर्स वर कॉल्ड सिपाही, फ्रॉम द पर्शियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। द हाईएस्ट पोजीशन that Indian could hold in the company troops was सूबेदार, a rank lower than an officer। जो हाईएस्ट पोजीशन होती थी जो इंडियन सोल्जर्स को होती थी वो सूबेदार, इससे अलावा वो और ऊपर पोजीशन पे नहीं जा सकते। By 1815 there were 2 lakh soldiers in the army. The huge army was used to control India in the foreign war। ठीक है, 2 लाख सोल्जर्स थे आर्मी में, बहुत ही बड़ी आर्मी मिल गई थी, बन गई थी। और कुछ वेज हैं कैसे वो आर्मी को कंट्रोल करते थे। टू कॉन्कर मोर टेरिटरी, बहुत ज़्यादा टेरिटरी को, ज़्यादा टेरिटरी को कॉन्कर करते थे। टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरी फ्रॉम रिवाइवल, टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट इन कंपनी के उसको प्रोटेक्ट कर सके। टू सप्रेस द इंटरनल रिवोल्ट एंड व्हेन रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, जो इंटरनल रिवोल्ट होते थे उनसे ब्रिटिश को प्रोटेक्ट कर। नाउ द पुलिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस established a regular police force in India. He divided each district into number of thanas. A district superintendent headed the police force in the district. A daroga was in charge of each thana with armed men under him to maintain peace and order. Towns and villages have kotwals and chokidars respectively. ठीक है, जो आपके दरोगा होते थे वो इंचार्ज होते थे हर एक थाने के। उनके साथ एक क्या होता था, आर्म्ड मैन होता था जो मेंटेन करता था पीस एंड ऑर्डर को। ठीक है, और टाउन्स और विलेजेस में कोतवाल्स होते थे और चौकीदार होते थे। Indians were excluded from all the superior posts in the police force too. The police was an effective force and succeeded in reducing major crime. ठीक है भाई, देखो इंडियंस को भी इस वाले पोस्ट से अलग रखा गया। ठीक है, क्या हुआ था, जो पुलिस था उसमें जो इफेक्टिव फोर्स थी, और वो फोर्स थी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, और वो सक्सीड हुई इन रिड्यूसिंग क्राइम्स। However, the police was not popular among the masses, and lower-ranking police personnel were notorious for corruption, oppression, and unsympathetic behavior. ठीक है, ज़्यादा इसको लोग जानते नहीं थे क्योंकि जो पुलिस पर्सनल थे वो बहुत ज़्यादा नोटोरियस थे इन करप्शन, बहुत ज़्यादा करप्शन, ऑप्रेसिव थे। ठीक है, नाउ जुडिशरी। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन लॉज वर बेस्ड अपॉन रीजनल एंड लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। देखो, ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियन के लॉज थे वो किस पे बेस्ड थे? रीजन। ठीक है, regional or local customs. Initially, the British did not change the Indian system of law. They applied British law only for Europe law. British ने चेंज नहीं करा अपना इंडियन सिस्टम, खाली जो ब्रिटिश लॉ थे वो किसको अप्लाई कर जाते थे? यूरोपियंस। However, the existence of two different set of laws were created confusion. Under Regulating Act of 1773, new Supreme Court was set up, whereas Court of Appeal called Sadar Nizamat Adalat was also set up at कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा गया और एक कोर्ट ऑफ अपील सेटअप करा गया। कहाँ पे? जिसे हम कहते हैं सदर निजामत अदालत। ठीक है, कोलकाता में। इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस कोड ऑफ लॉ नोन एज कॉर्नवालिस कोड। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का एस्टेब्लिशमेंट करा। दीज लॉज इंक्लूडेड सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, लैंड रेवेन्यू एंड द पुलिस सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल लॉ आते थे आपके। ठीक है, और लैंड रेवेन्यू और पुलिस सिस्टम आते। दिस कोड वाज मेंट टू एस्टैब्लिश सुपरियरिटी ऑफ रिटन लॉ ओवर द एज ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन। 1833 लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड व्हिच कंपाइल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। 1833 में लॉ कमीशन ने क्या एस्टैब्लिश करा? प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। It professed the ideal of one law for all. However, this was not practiced when it came to Indians and Europeans, whose trials still took place in separate courts. ठीक है, जो आपके इंडियंस और यूरोपियंस के ट्रायल थे दोनों के अलग अलग सेपरेट कोर्ट्स में। ठीक है, आपको मैंने इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पेट्स इंडियन एक्ट पढ़ाया, चार्टर एक्ट पढ़ाया 1813 और 1833। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया, सिविल सर्वेंट्स का कैसे होता था, पहले कैसे एग्जाम होता था और फिर कैसे हुआ। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you.